Hello friends, how are you all? I think you will be fine. That's why you are here to watching this video. Okay, now from this video we are going to start a new thing which is very important for us to understand, especially if you are a aspirant of UPSC examination or if you are aspirant of being a good citizen of our country. Okay, so here in this video basically we are going to learn about the social science, that actually what the social science is and what we understand in our life the social science about social science. Okay, so in this video we will discuss about the social science, that what is it, what are the myths, and we are also going to discuss about and most of the important question of you for you, that is about your life. Okay, what is that question? We will look about it in the our next slides, and then after we will discuss that how to take any decision regarding choosing any subject. We will also discuss about what is social science, how can we apply social science in our daily life, why studying social science is more important than any other subject. Okay, we will also discuss about the career opportunities in social science and the important personalities in the social field. So let us move forward and discuss all these things and uncover ourselves in the terms in the field of social science. We have to remove the cover from ourselves, the cover of thinking from ourselves about the social science. Okay, let us move forward. So very first we are going to discuss about thought of the video. What is the thought of the video? Because from this thought you could understand that what we are going to learn in this video. Okay, first of all, it is given that the thought is given that all truths are easy to understand once they are discovered. The point is to discover them, and it has been told by Galileo Galilei. मतलब कहने का मतलब ये है ना, जितना भी सच्चाई है उसे आराम से समझा जा सकता है, लेकिन उसे समझने से पहले क्या करना है हम लोग को? सबसे पहले हम लोग को उस थॉट को क्या है या जो भी सच्चाई है उसे डिस्कवर करना है। जब हम डिस्कवर कर लेते हैं तब हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे में हम एग्जांपल ले सकते हैं सोशल साइंस का। लोग समझते हैं सोशल साइंस को क्या, यूजलेस सब्जेक्ट, कोई मीनिंग नहीं है, ना कोई थीम है, सिर्फ उसमें रटना ही रटना है, लेकिन और उसको बहुत ही खराब सब्जेक्ट समझते हैं। लेकिन एक्चुअली में बात यह है कि लोग उसका एसेंस समझते ही नहीं हुआ, दैट व्हाट इज द एसेंस ऑफ द सोशल साइंस। जब वो ये समझ लेंगे क्या एसेंस है, क्या इसके द्वारा हमारे ऊपर क्या सोशल साइंस करना चाहता है या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल साइंस हमारी लाइफ में, अगर ये लोग समझ लेंगे तो सोशल साइंस को समझना एकदम ईजी हो जाएगा और सभी के लिए समझना भी ईजी होगा और जानना भी ईजी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ कि क्या लोग समझते हैं सोशल साइंस के बारे में, उसे जानने के लिए। ठीक, लोग समझते हैं क्या? ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है वो बोरिंग सब्जेक्ट है, डल है, जिसमें कोई प्रोडक्टिविटी ही नहीं है, ना इसमें कोई वैल्यू है, वैल्यूएबल भी नहीं है, लोग ऐसा समझते हैं। साथ साथ पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इट हैज़ वेरी लेस स्कोप फॉर द फ्यूचर व्हेन यू आर ऑप्टिंग द सब्जेक्ट in your career or in your life, then definitely you are not going to be a wealthy person, good person. So people understand about it, and also people think that there is nothing to read and understand, means इसमें कुछ है ही नहीं, ना पढ़ने लायक कुछ है ना समझने लायक है, सिर्फ इसमें रटने लायक सब चीज़ है, फिर इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ऐसा लोगों का मानना है। ठीक है, इन लोगों का ऐसा मानना है तो उन लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्या है क्वेश्चन, आइए आपको बताते हैं। क्वेश्चन यही है कि ठीक है, अगर आपको साइंस या कोई दूसरा सब्जेक्ट पसंद भी है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि लगभग 70 से 80% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 11th में साइंस या कोई दूसरा या कॉमर्स सब्जेक्ट चूज करते हैं, स्ट्रीम चूज करते हैं, लेकिन वही ग्रेजुएशन में आकर आर्ट्स क्यों चूज करते हैं? क्या हो सकता है रीज़न? तो मेरे हिसाब से इसका रीज़न ये हो सकता है कि लोगों के पास डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना वो उस समय डेवलप नहीं होता है, और या वो लोग अपने फ्यूचर के बारे में प्लान नहीं कर सकते, या फैमिली के प्रेशर में आके ले लेते हैं, या दूसरे लोगों के प्रेशर में लेकर ले लेते हैं डिसीजन। लेकिन डिसीजन एक्चुअली वैसा होना चाहिए जो कि उनका खुद का हो, क्योंकि आने वाले जो साल है 10 साल 20 साल 30 साल
उनको उस चीज़ में अपना लाइफ को क्या करना है, खर्च करना है, अपना लाइफ को जीना है। अगर वो काम करने में मज़ा ही नहीं आएगा तो आप वो डिसीजन ले क्यों रहे, वही समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा सोच समझ कर हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है मेरे हिसाब से डिसीजन मेकिंग पावर है ना, इसमें लोग थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं। तो इसी के बारे में इसी के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं कि आखिर डिसीजन ले तो ले कैसे, क्या, हाउ टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग चूजिंग एनी सब्जेक्ट और स्ट्रीम। तो डिसीजन लेने से पहले सबसे पहले हम लोग को अपने बारे में जानना होगा, अपने खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। आखिर हम है तो है क्या, ठीक, में हमारा क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, किस चीज़ में हमारा जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, और हमारा पैशन क्या है, यानी कि कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना आ जाए लेकिन वो काम को करना है तो करना है, तो हमारा पैशन क्या है। ठीक, साथ साथ एक गोल बनाइए, प्लान बनाइए और उस प्लान की ओर पूरी एकदम शिद्दत से उसके पीछे लग जाइए। Definitely you are going to be a successful person in the near future, but if you don't do it, then what's the reason of staying on the earth? Because there must be a reason so that you are here. Without any reason, nothing is happening on the earth. So you just fix a goal or target for your life and just give you 100% to achieve it. Now, after that, let us come on to the topic that what is social science, and it's a very important topic because you have to uncover yourself in this field. Okay, so let me tell you what is social science. The term social science was first of all used by the French philosopher Auguste Comte in 19th century. He also coined the word sociology to describe द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। यानी कि ये टर्म जो है ना, सोशल साइंस जो टर्म है वो सबसे पहले फिलोसफर अगस्टे कॉम्टे के द्वारा यूज किया गया था 19th सेंचुरी में, और उन्होंने सोशोलॉजी वर्ड जो है उसे भी क्वाइंट किया था, जिसका मतलब होता है साइंटिफिक तरह से स्टडी करना, किसका, सोसाइटी का। ठीक है, जिस तरह से साइंस में है ना, पहले भी साइंटिस्ट हुआ किए थे, अभी भी साइंटिस्ट है, उसी तरह से सोशल साइंस में भी पहले भी साइंटिस्ट थे और अभी भी साइंटिस्ट है। जैसे में कार्ल मार्क्स हो गया, मैक्स वेबर हो गया, और भी साइंटिस्ट है। ठीक है, सोशल साइंटिस्ट एक सब्जेक्ट के जैसा है जैसे दूसरा सब्जेक्ट भी है, जिसमें हम लोग को स्टडी करना सोसाइटी के बारे में, आइडिया के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, फिजिकल कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, ठीक है, लैंडफॉर्म्स कैसा है, कहाँ पे माउंटेन से कहाँ पे प्लेट्यू है, वो सब, फिर डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में, और बहुत सारा चीज़ें जो पढ़ने लायक है जो कि सोशल साइंस में है। देखो, सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि हम लोग वही चीज़ पढ़ते हैं जो हमारे आसपास में मौजूद होता है, जो हमारे लिए ज़रूरी होता है। हम लोग बेसिकली वही चीज़ पढ़ा करते हैं। ठीक है, हम लोग वैसा चीज़ नहीं पढ़ते हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे रियल लाइफ में है ही नहीं, वैसा चीज़ इसमें नहीं है। इसमें वही चीज़ है जो हमारा रियल लाइफ में क्या हो, इम्प्लीमेंटेड हो। ठीक है, जिस तरह से साइंस में हम लोग को पढ़ना रहता है सोसाइटी, जिस तरह से साइंस में पढ़ते हैं उसी तरह से हम लोग को सोशल साइंस में भी पढ़ना रहता है सोसाइटी के बारे में और उसका वेरियस स्ट्रक्चर के बारे में। कैसे, साइंटिफिक रीजन से। साइंटिफिक रीजन यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रिंसिपल्स हो गया, आइडियाज हो गया, ओपिनियंस हो गया जो कि लोगों के द्वारा दिया जाता है, जो कि फिलोसफर हुआ करते थे या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सोशल साइंस के फील्ड में, उनके द्वारा ये आइडियाज प्रिंसिपल्स दिया जाता है, और उसी पर मद्देनजर रखते हुए हम लोग को सोसाइटी के बारे में और उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना रहता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये सब्जेक्ट जो है वो 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा भी और अदर सब्जेक्ट्स भी है। हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हम लोग पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में या एक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो पास्ट में हुआ है। ठीक है, और वैसे एक्शन से, इंसिडेंट से हम लोग लर्निंग लेते हैं, और वैसा ही अगर इंसिडेंट्स या उस जैसा ही इंसिडेंट फ्यूचर में होता है तो वहाँ से जो उसका जो भी एक्शन लिया गया है उसका जो कंसिक्वेंसेज हुआ उसको ध्यान में रखते हुए और फ्यूचर में हम लोग क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, ताकि वैसा सिचुएशन या वैसा कंडीशन हमारे लोगों को झेलना नहीं पड़े। ठीक है, या वैसा प्रॉब्लम्स हमारे लोगों को झेलना नहीं पड़े जो पास्ट में लोगों को झेलना पड़ा था। ठीक है, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बारे में। किसका ज्योग्राफिकल लोकेशन, या तो वर्ल्ड का हो गया, या स्टेट का हो गया, या कंट्री का हो गया, या डिस्ट्रिक्ट का हो गया। साथ साथ हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं, वेदर के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल टोपोग्राफी करने का मतलब है कि लैंडफॉर्म, डिफरेंट जो लैंडफॉर्म्स है, जैसे प्लेट्यू हो गया, माउंटेन्स हो गया, वैलीज हो गया, इस सब के बारे में ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक,
अब पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिलोसफी पढ़ते हैं, आइडियोलॉजी पढ़ते हैं, डिफरेंट लीडर्स का प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी पढ़ते हैं पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग अपना फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। साथ साथ हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या इकोनॉमिक्स हमारा चौथा मेन सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। कहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर? हमारे कंट्री का, वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ साथ जीडीपी के बारे में भी पढ़ते हैं, पर कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ते हैं, कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं, कैपिटल मतलब वही हमारा मनी हो गया, उस सब के बारे में पढ़ते हैं। और बहुत सारा चीज़ जो कि इकोनॉमी में जुड़ा हुआ है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक। और सारा भी सब्जेक्ट है इसमें सोशल साइंस में, जैसे में फिलोसफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, म्यूजिक हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, होम साइंस हो गया, फैशन स्टडीज हो गया, एक्सेट्रा। इन सब चीज़ जो है किससे जुड़ा हुआ है? सोशल साइंस से जुड़ा हुआ है। सोशल साइंस किससे जुड़ा हुआ है? सोशल साइंस सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। सोसाइटी किससे जुड़ा हुआ है? सोसाइटी लोगों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि हम लोग सोशल साइंस में लोगों से जुड़ी हुई बातों को पढ़ते हैं। चलिए नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। और आगे हम लोग का क्या पढ़ना है? आगे हम लोग का ये पढ़ना है कैसे जो है इस सब्जेक्ट को हम लोग अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उससे क्या करते हैं हम लोग? सोशल साइंस सब्जेक्ट उसमें जिससे हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, सोसाइटी के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। और इसका यूज भी है। अब इसको हम लोग अप्लाई भी करते हैं हमारे डेली लाइफ में। कैसे? इस तरह से सबसे पहले सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसका हम लोग यूज करते हैं क्या समझने के लिए? हमारे पर्सनालिटी को, हमारे इमोशंस को, हमारे मोटिवेशंस को, हमारे बिहेवियर को अगर हम लोग अपने बारे में जानने के लिए इच्छुक है तब, ठीक है। साथ साथ ये हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ाता है, रिलेशनशिप्स भी अच्छा करता है, सोशल स्किल्स भी बढ़ाता है। तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? सोशल साइंस पढ़ते हैं। जैसे में साइकोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है सोशल साइंस का, जिसमें हम लोग अपने बारे में, अपने माइंड के बारे में पढ़ते हैं। साथ साथ उससे हम लोग अपने स्ट्रेंथ जो है, वीकनेस हो गया, उन सब चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है इसमें हम लोग अपना या लोगों का सोशल जो प्रॉब्लम्स है उसे आइडेंटिफाई करते हैं और गवर्नमेंट के सामने जो पेश करते हैं, ये देखिए ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट होना चाहिए। साथ साथ अगर हम चाहें तो अपने आप को एडवोकेट भी कर सकते हैं। किसमें? एडवोकेट भी कर सकते हैं, ताकि जो लोगों का जो जस्टिस है उन्हें वो मिल सके, फ्रीडम मिल सके। ह्यूमन राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है तो लोगों का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन से क्या कर सके? ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को बचा सके, ठीक है। साथ साथ सोशल साइंस जो है हमारा यूज होता है अंडरस्टैंड करने के लिए जोग्राफिकल कंडीशंस, कहाँ का? वर्ल्ड का ही, साथ साथ वर्ल्ड का, स्टेट का, कंट्री का, कहीं का भी। साथ साथ मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ इकोनॉमिकल कंडीशन होगा, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, पॉलिटिकल कंडीशंस और पॉलिटिक्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज, एंड लास्ट नॉट द लिस्ट टू नो द इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जैसा इकोनॉमिकल कंडीशन है वर्ल्ड का, उसको बारे में जानने के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में हम लोग जान सकते हैं, साथ साथ जो इवेंट्स हो रहा है वर्ल्ड में उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं सोशल साइंस पढ़कर, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इन सब क्षेत्र में या और भी ज़्यादा क्षेत्र है हमारी लाइफ के, वहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किसको? सोशल साइंस को। नहीं, चलिए अब बात ये हो गया कि सोशल साइंस को कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, ये तो बात हो गया। लेकिन सोशल साइंस को और सब दूसरे सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए तब भी इसे पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा या हमें क्यों पढ़ना चाहिए सोशल साइंस को? तो उसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करने जा रहे हैं कि why studying social science is more important than any other subject. The reason is simple, that social science help us to understand the various scientific thing at the society level, ठीक है। साथ साथ हम लोग सोसाइटी के बारे में जान सकते हैं और सोशल साइंस को पढ़कर कल्चर के बारे में जान सकते हैं। किनका कल्चर? लोगों का कल्चर, पास्ट में कैसा था, अभी कैसा है, ट्रेडिशन पास्ट में कैसा था, अभी कैसा है, कैसे चेंज हुआ, इवॉल्व हुआ। साथ साथ इकोनॉमी के बारे में और बहुत सारा चीज़ है। इस सब्जेक्ट को पढ़कर हम लोग अपना नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। कहाँ के बारे में? मतलब बढ़ा सकते हैं नॉलेज को हम अपने सराउंडिंग के बारे में, ठीक। सोशल साइंस जो है एक क्या करता है, ये सब्जेक्ट जो है हम लोग को एक अच्छा सिटीजन बनाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है।
जो कि बहुत ज़रूरी है पढ़ना, और वही काम दाने का कौन करता है, सोशल साइंस करता है। साथ साथ ये हमारा नॉलेज को डीपली जो है इन्हांस करता है, हमारे राइट्स के बारे में, लैंडफॉर्म्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमारा जो नॉलेज जो है ये इन्हांस करता है, बढ़ाता है। साथ साथ इसका मतलब ये हो गया कि ये गिफ्ट हम लोग को नॉलेज देता है किसके बारे में, about those which are present in our surroundings and we can easily relate with what we have studied। यानी कि हम लोग को जो सोशल साइंस क्या करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है, वैसा नॉलेज जो कि सोसाइटी में क्या हो, एप्लीकेबल हो, इम्प्लीमेंटेबल हो। ऐसा नहीं कि हम उसे पढ़ते चले गए, उसका कोई रियल इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं है कुछ मालूम ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता सोशल साइंस के साथ। तो ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट तो बनता ही है ना क्या। तो चलिए अब हम लोग बात कर लिए कि इसमें क्यों पढ़ना चाहिए सोशल साइंस और सब सब्जेक्ट के साथ साथ, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है सोशल फील्ड में या सोशल साइंस जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं, तो उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे अच्छा करियर इसमें है यूपीएससी एग्जाम दीजिए और आईएएस आईपीएस बन जाइए, सबसे अच्छा करियर है अगर आपको इंटरेस्टेड हो वो काम करने में तब। साथ साथ इसमें आप लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, ठीक है। प्रोफेसर यहाँ 2 बार हो गया, सॉरी इसके लिए। पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इकोनॉमिक्स बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं। तो ये सब जो करियर है, और इससे भी ज़्यादा और भी सारा करियर फील्ड है सोशल साइंस में जो आप चूज कर सकते हैं। तो इसमें करियर का जो ऑप्शन है वो भी है, इसमें सब्जेक्ट में मीनिंग भी है, ये वैल्यूएबल भी सब्जेक्ट है, ठीक है। वर्दीलेस नहीं है, मतलब वर्थलेस नहीं है, वैल्यूएबल सब्जेक्ट भी है। तो जो मिथ है क्या हो गया, वो गलत हो गया, ठीक है। अभी हम लोग प्रूव किए ना, मिथ जो है वो गलत हो गया, ठीक। अब हम लोग समझते हैं क्या जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है, जो कि इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं सोशल फील्ड में, उन लोगों के बारे में थोड़ा सा उनका नाम जान लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा हम लोग के लिए जानना, क्योंकि एज ए सोशल साइंस स्टूडेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to know about each and every step of that field. Okay, now let us move forward. Who were the important personalities in the social science? They are Bhimrao Ambedkar from India, Mahatma Gandhi, Jean-Jacques Rousseau, Abraham Lincoln, Adolf Hitler, Max Weber, Karl Marx, Aristotle. These are not only those, because there are also more. तो आपको समझना पड़ेगा कि ये तो पर्सनालिटीज है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ऐसा काम किए जो कि सोसाइटल लेवल, मतलब सोसाइटी के लेवल पर बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो उसे बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन और सब जो लोग हैं वो किए नहीं, लेकिन इन लोगों ने शुरुआत किया। तो ये लोग तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ साथ और भी लोग हैं जिन्होंने सोशल फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। चलिए तो अब आज हम लोग अपना लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं। अब टॉपिक मतलब वीडियो खत्म करने से पहले इस वीडियो का कोड क्या है वो पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या मजा आने वाला है। तो इसका कोड यही है कि सोशल साइंस एक टूल है, एक तरह से क्रिटिकल टूल्स यानी कि कॉम्प्लेक्स टूल्स है, जिसके मदद से हम लोग एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं ना, जो कि क्या हो, मोर इक्विटेबल, यानी कि वहाँ पर इक्वालिटी हो हर एक सेंस में, ठीक है, हर एक सेंस में इक्वालिटी हो, साथ साथ जस्टिस भी हो और ह्यूमन भी हो, ठीक है। यानी कि सब लोग आपस में एक दूसरे को क्या सहानुभूति प्रदान करें अगर कुछ ऐसा कंडीशन या कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जो उनके लिए विपरीत हो, यानी कि जहाँ लव हो, जहाँ अफेक्शन हो, जहाँ केयर हो, ठीक है, जहाँ इक्वालिटी हो, जहाँ फ्रीडम हो, जहाँ अपना कल्चर को प्रमोट करने का राइट हो, जहाँ अपना एक अपना एजुकेशनल स्टाइल फॉलो करने का राइट हो, ठीक है, अपना रिलीजन फॉलो करने का राइट हो। तो सोशल साइंस एक टूल है जिनके माध्यम से हम लोग इन सब क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं, साथ साथ एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं ना, क्रिएट कर सकते हैं जो कि हर लोगों के लिए हो, ना कि एक सिंगल आदमी के लिए हो, बल्कि हर लोगों के लिए हो, एक सोसाइटी हो जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का वीडियो का एम, पढ़ने का और समझाने का आपको कि सोशल साइंस आपके सब्जेक्ट क्या है और जो भी इसका मिथ है वो सही है या गलत है। तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं इसे कि जो मिथ जो था वो बिल्कुल भी गलत था, यानी कि ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते क्या करना है, आपको पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ पढ़ना कैसे है, तो
पढ़ने से पहले इसको डिस्कवर करना है। डिस्कवर करने का मतलब क्या हुआ कि सोशल साइंस के बारे में और जानना है। जब और जानेंगे तो हमारा इंटरेस्ट रहेगा तो हम खुद में खुद उसे पढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर पेइंग अटेंशन, फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट, एंड we will meet soon for the another video. Thanks a lot. Bye bye.